কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী ত্বাং নমামি হরিপ্রিয়ে মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরি ভক্তি পরাচিচ হরিনাম পরায়ণ দুর্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ। নমো ধর্মায় মহতে নমো কৃষ্ণায় বেধসে ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মাन् বক্ষ্যে সনাতনং নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশয় অভীষ্ট পূরণ। দুর্গমে পথিমেন্দ্রস্য স্থলোৎপাদগতির্মুঃ সকৃপা জ্যেষ্ঠিদামেন সন্ত সন্ধ্যবদম বনম। অনাবৃত্তাং পূর্বৈরপি মুনিগণৈর ভক্তি নিপুণৈঃ শ্রুতে গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরসফলাং ভক্তিলতিকাং কৃপালুস্তাং গৌরী প্রভুরতি কৃপাভিঃ প্রকটয়न् সচিশুনুঃ কিং মে নয়ন সরণিং যাস্যতি পুনঃ। কলিপাবনাবতার শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পরম অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদ প্রবর শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী চরণ তিনি তার স্তবাবলিতে মহাপ্রভু যে ভক্তি দিয়েছেন সেই ভক্তিকে লতিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভক্তি লতিকাম কতগুলি বিশেষণ দিয়েছেন সেই ভক্তি। পূর্বৈরপি মুনিগণৈর অনাবৃত্তাম পূর্ব পূর্ব যুগের ভক্তি নিপুণ মুনিগণ যা সম্যক রূপে জানতেন না তাদের দ্বারাও প্রকাশিত হয়নি। শ্রুতে গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরসফলাং শ্রুতিগণ যাকে অমূল্য রত্নের মতো গোপন করে রেখেছে হৃদয়ে, শ্রুতিগণ প্রকাশ করেননি।
এবং প্রেমোজ্জ্বল রসকলা, উজ্জ্বল প্রেমরস, শ্রী শ্রী রাধা মাধবের সেবা, যার ফল সেই লতা। ঈদৃশ ভক্তি কল্পলতাকে প্রকট করবার জন্য জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে আর গৌর দেশে অবতীর্ণ হয়েছেন সেই পরম কৃপালু প্রভু সচিনন্দন। মহাপ্রভুর করুণার মহিমা বলা হচ্ছে যে তিনি আমাদিগকে উন্নত উজ্জ্বল রসফলা এবং পূর্ব যুগের মুনি ঋষিগণের অগম্যা এবং নিগম নিগুড়া ভক্তি কল্পলতার সন্ধান দিয়েছেন। এই ভক্তিকে মননের সঙ্গে সহজ সরল ভাবে উপস্থাপিত করবার জন্য আমাদের পরম গুরু মহারাজ তিনি ভক্তি কল্পলতা গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেছেন, যার অবতরণিকা আমরা আস্বাদন করছিলাম কয়েকদিন যাবৎ। আজ শ্রীল পরম গুরু মহারাজের সেই তিরোধান তিথি উপলক্ষে এখানে ভুবন মঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন চলছে। শ্রীল মহান্ত মহারাজ আপনাদের মধ্যে আসছেন, আপনারা ওনাকে একটু স্বাগত জানান। উনি শ্রী পরম গুরু মহারাজের শ্রীঅঙ্গ সেবক এবং গুরু মহারাজের দীর্ঘ ছায়া সঙ্গী করেন। আমরা ওনার চরণে প্রার্থনা জানিয়েছি উনি আপনাদিগকে পরম গুরু মহারাজের সম্বন্ধে আমাদের সম্মুখে অবগত করাবেন। ওনার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাবো উনি ব্যাসবদ্ধিকে স্বীকার করুন এবং আমরা তো বলি, কিন্তু যারা বলে তাদেরও তো ইচ্ছা হয় শুনতে, তারা শুনতে ভালোবাসে। যারা বলতে ভালোবাসে তারা শুনতেও ভালোবাসে। তো মহান্ত মহারাজের শ্রীমুখে আমরা তো পরম গুরু মহারাজকে দেখবার আমাদের সৌভাগ্য হয়নি। উনি 1975 পয়লা ডিসেম্বর নিত্যলীলায় প্রবেশ করেছেন। শ্রীল মহান্ত মহারাজের কোলেই মাথা রেখে এবং আমাদের শ্রীল সখীদাস বাবাজি মহারাজের দ্বারা সেবিত হয়ে নর্ম সেবক নর্ম সঙ্গী, শুধু নর্ম সঙ্গী নয়, এক প্রাণ। যেভাবে উনি সেবা করেছেন পরম গুরু মহারাজের, পরম গুরু মহারাজ আদর করে বলতেন বাবা কেশবানন্দ, এই ওনার আদরের আহ্বান। বাবা কেশবানন্দ
এই জন্য গুরু মহারাজ গুরুদেবের অঙ্গসেবক দাদাজি মহারাজকে গুরু মহারাজ বিশেষ সমীহের সঙ্গে দেখতেন। হয়তো কোনো উনি হাসি গল্প বলছে, যেই দাদাজি মহারাজ এসে গেছেন সঙ্গে সঙ্গে উনি গম্ভীর হয়ে গেছেন। দাদাজি মহারাজ যা বলতেন, এমনকি একদিন আমাকে বললেন, দেখো আমার এই ট্রাস্ট করবার ইচ্ছা ছিল না, যখন একটু নানা প্রকার দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেই দিকে গুরু মহারাজ বললেন, দেখো আমার ট্রাস্ট করবার ইচ্ছা ছিল না আদৌ, আমি বাধ্য হয়ে করেছি। আমার পূর্ণ ভরসা ছিল দাদাজি মহারাজের নাম উচ্চারণ করলে তাও করি, আমি পূর্ণ ভরসা করেছি। যাই হোক, আমরা দীর্ঘ 35-36 বছরের নৈকট্যে যা জানতে পেরেছি, শ্রী গুরু মহারাজ আমাদের দাদাজি মহারাজের ইচ্ছা ছাড়া, ওনার অনুমোদন ছাড়া কোনো কাজই করেননি এবং কোনো কাজই করতে চাইতেন না। কত বড় কৃপা! এই যে আমরা যেখানে বসে আছি, এইখানে বাবলার জঙ্গল, কতগুলো উঁচু নিচু ইটের ঢিপি, কাকরি ইটের। পরম গুরু মহারাজ শৌচ করতে এসেছেন, দাদাজি মহারাজ লোটা দিতে ভুলে গেছেন, তখন বৃদ্ধ অবস্থা। লোটাটা, জলের লোটাটা ওনাকে বসিয়ে জলের লোটা আনতে গেছেন, জলের লোটাটা উনি আনতে ভুলে গেছেন। এগুলি কত নর্ম সেবা! এইভাবে যে ওনার শ্রীঅঙ্গের সেবা, শ্রীল দাদাজি মহারাজ এখনো বলেন যে ওনাকে চোখের সামনে আমি দেখতে পাই যে উনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, উনি আপদে বিপদে সর্ব পরিস্থিতিতে আমাকে রক্ষা করছে, বুদ্ধি যোগাচ্ছে। যখন হতাশার ছায়া এসে যায়, সবারই আসে হতাশা, আনন্দ, বেদনা, সেই সময়ে উনি এসে দাঁড়ান, সাহস যোগান, অভয় দেন। আমরা হয়তো ওনাকে ভুলে যাই, কিন্তু ওনারা তো কখনো আমাদেরকে ভোলেন না। এটাই তো ভরসা। এই কথাগুলি শুনবার জিনিস, বোঝবার জিনিস। দাদাজি মহারাজ এও বলেছেন যে পরম গুরু মহারাজের অন্তরে যা যা আকাঙ্ক্ষা বা যা যা ইচ্ছা কথা জাগত, সেগুলি ওনার হৃদয়ে উনিও বুঝতে পারতেন। অর্থাৎ সেবক এবং সেব্যের মনটা সেবা করতে করতে এক হয়ে যায়। বাইরের থেকে কেউ আসতেন, প্রভু সন্তান নন, তারাও দাদাজি মহারাজকে অনুরোধ করতেন যে বাবাজি মহারাজের কি একটু দর্শন পেতে পারি। উনি মধ্যস্থ। এমনকি গুরু মহারাজকে পর্যন্ত কোন সময় যদি উনি ডাকতে যেতেন, গুরু মহারাজ ভয়ে থরহরি কম্প। একথাও উনি বলেছেন যে গুরু মহারাজ আমায় ডাকছেন, কি জন্য ডাকছেন, কেন, কি জন্য, উনি প্রসন্ন আছেন তো? এই যে গুরু সেবক শ্রী গুরুপাদ পদ্মের অন্তরঙ্গ সেবা করেছেন এবং গুরুপাদ পদ্মের অন্তিম নির্জান লীলার সঙ্গী
তার মস্তকে মাথা রেখে মস্তক রেখে গুরু মহারাজ অন্তর্হিত হয়েছেন। এই যে গুরু সেবকের কতখানি সম্মান, সেটি গুরু মহারাজ আজীবন আচরণ করে দেখিয়েছেন এবং কৃতজ্ঞতা বুদ্ধি শ্রীল দাদাজি মহারাজের প্রতি। এরকম অনেক কথা উনি কথা প্রসঙ্গে পরম গুরু মহারাজের মহিমা প্রসঙ্গে বলেন। আমাদের ইচ্ছা সেই কথাগুলিকে আমরা গুছিয়ে একত্রিত করব। আমরা শ্রী মহাত্মা মহারাজকেও জানিয়েছি যে কথাগুলি তো আপনিই জানেন, আমরা তো জানি না, আমরা তো সেই লীলা দেখিনি। আপনি যদি পরম গুরু মহারাজ এবং গুরু মহারাজের এই যে স্মৃতিচারণ, এই যে স্মৃতিচারণ বলে, স্মরণিকা বলে, জীবনী তো মোটামুটি প্রকাশিত আছে, কিন্তু এই যে বিশেষ দিনে বিশেষ ঘটনাগুলি, আরেকটি কথা মনে পড়ে গেল। তখন পরম গুরু মহারাজ বার্ধক্য দশা, একা দুপুরবেলা রাধাকুণ্ডে স্নান করতে গেছেন। প্রতিদিন রাধাকুণ্ডে স্নান করেন, অবতীত নিয়ম। তো সেই সময় কুণ্ডের সিঁড়িগুলি কাই পিচ্ছি, কিভাবে যেন পা ফসকে, এই জাহ্নবা ঘাটে পা ফসকে পরম গুরু মহারাজ জলের ভিতরে অনেকটা চলে যান, হাবুডুবু খেতে থাকে। বার্ধক্যে হঠাৎ দেখুন রাধারানীর কি করুণা। এই সময় আমাদের মা জাহ্নবার পূজারীজি মহারাজ, গোপীনাথজিউর নর্মসেবক, আমাদের জ্যেষ্ঠ গুরু ভ্রাতা শ্রী সখীদাস বাবাজি মহারাজের মনে পড়ে যে দাদু মহারাজ তো এই সময় স্নান করতে আসেন, কই দেখি একবার কুণ্ডের পানি। আপনারা জানেন ওই দিক দিয়ে একটা দরজা ছিল, এখনো দরজা, এখন ওই জায়গাটা জানলা হয়েছে। ওই দিক দিয়ে কুণ্ডের পাড়ের থেকে গোপীনাথ ভিতরে ছিলেন। তো উনি কুণ্ড তটে সিঁড়িতে ছুটে যান, দেখছেন পরম গুরু মহারাজ ডুবে যাচ্ছে। উনি তাড়াতাড়ি ঝাঁপ দিয়ে পরম গুরু মহারাজকে তোলেন। এর মধ্যে উনি অনেকটা জলও খেয়ে নিয়েছেন। এতখানি নর্ম সেবা করেছেন আমাদের দুই দাদাজি মহারাজ, এইরকম সেবা। এই জন্য গুরু মহারাজ পরম গুরু মহারাজের যে জীবনী প্রকাশ করেছেন, সেইখানে দেখবেন শেষে লেখা আছে যে আমার প্রিয়তম দুই শিষ্যদল শ্রীমান অমুক শ্রীমান অমুক, তারা গুরুদেবের যেভাবে সেবা করেছেন, তারা গুরুদেবের যেভাবে প্রাণ ঢালা সেবা করেছেন, এবং এই প্রশিষ্যদের সেবায় উনি যতটা আনন্দ পেতেন, ওনার তো অনেক শিষ্য ছিল। আমাদের প্রাণ কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ ছিলেন, ব্রজসুন্দর দাস বাবাজি মহারাজ ছিলেন, দীনবন্ধু দাস বাবাজি মহারাজ ছিলেন, নিমাই চরণ দাস বাবাজি মহারাজ ছিলেন, রাধা বিনোদ দাস বাবাজি মহারাজ ছিলেন, আরো তো অনেকে ছিলেন। কিন্তু এই গৌর সুন্দর দাস বাবাজি মহারাজ ছিলেন, অনেকেই ছিলেন। আমাদের গুরু ভ্রাতাগণের ভিতরে ত্রিভঙ্গদা, গায়ত্রী মহারাজ, আমাদের ভক্তিদা, তারাও পরম গুরু মহারাজেরই সমকালীন, সেই সময়ে প্রকট লীলার সময়ে। কিন্তু গুরু মহারাজ লিখছেন শ্রীমান অমুক এবং শ্রীমান অমুক, দুই দাদাজির নাম করে বলছেন, এনাদের সেবায় উনি যত তৃপ্ত হতেন, যত প্রসন্ন, যত এনাদের সেবা গ্রহণ করে আনন্দ পেতেন, তিনি নিজের শিষ্যদের সেবাতেও এত আনন্দ পেতেন না।
দেখবেন আপনারা শেষের লাইন যে ওনারও তো অনেক শিষ্য ছিল, ত্যাগী শিষ্য, তারা এই প্রকার প্রাণঢালা সেবার সৌভাগ্য পায়নি। কারণ আমরা তাদেরকে দেখেছি, তারা দীর্ঘকাল প্রকট ছিলেন। যেভাবে এনারা সেবা করেছেন এবং এনাদের সেবায় যেভাবে উনি আত্মদান করেছেন, এই জন্য এনারা কৃপাটাও পুরো পেয়েছেন। কি করলে কৃপা পাওয়া যায়? সেবার কৃপা পাওয়া যায়। যে যতটুকু নিঃস্বার্থ হয়ে সেবা করবে সে ততটুকুই কৃপা পাবে। মুখের কথায় তো কৃপা পাওয়া যায় না। মাতৃশ জীব যেমন ভাষণ দিয়েই খালাস, ভাষণে তো কৃপা পাওয়া যায় না। শুধু পরম গুরু মহারাজের নয়, আমরা দেখেছি গুরু মহারাজ 15 দিন রামকৃষ্ণ মিশনে, সেবার 18-19 দিন রামকৃষ্ণ মিশন হসপিটালে ভর্তি। দাদাজি মহারাজ সেইখানে, উনি সামলদা, আমাদের বড়রামদা রামকৃষ্ণ মিশনের পিছনের দিকে। এইভাবে যে আপদে বিপদে সর্বাবস্থায় এমনও অনেক কথা আছে যেগুলি আমরা বলতে পারি না, বলা যায় না। আদালত থেকে আরম্ভ করে সমাজ থেকে আরম্ভ করে সম্মান থেকে আরম্ভ করে সর্বাবস্থায় যে সুরক্ষা এবং অঙ্গ সেবা। এই জন্য আজও দাদাজি মহারাজ গর্ব করে বলেন, সেবা তো আমার, পরম গুরু মহারাজের সেবা তো আমার সেবা। উনি আমাকে দিয়ে গেছেন আমার সেবা, গুরু মহারাজের সেবা আমার সেবা। আমি যতটুকু সামর্থ্য সাধ্য সেইভাবে করব। তোমরা অবশ্য সহযোগ করো, এতে সবাই সহযোগ করো, কিন্তু প্রভুত্ব করো না, দাসত্ব করো। সবাই দাসত্ব করো, এটা দাসত্বের ভূমি, কিন্তু সেবার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তো আমাকে, আমার আনুগত্যের জন্য, পিছনের জন্য। আর সেবার নিয়মও তাই, যিনি সেবাধিকারী তার আনুগত্য ছাড়া তো, আজ্ঞা ছাড়া তো সেবা হয় না। যাই হোক, দাদাজি মহারাজকে এই সমস্ত ঘটনাগুলো আমরা বলবো। উনি লিখতেও ভালোবাসেন, উনি বসে বসে যে পরিশ্রম করে লেখেন, আমরা তো বসতে পারি না, মনটা উড়ু উড়ু করে, বসলে একটা অস্থির লাগে, মনে হয় ঘুরে আসে। ওনাকে এই কথাগুলো আমরা অনুরোধ করবো, উনি যেন দয়া করে লিখে যান, ভবিষ্যতে যারা আসবেন তারা জানতে পারবে সেবার মহিমা, পরম গুরু মহারাজের মহিমা, গুরু মহারাজের মহিমা আজকের দিনে নয়, সেকালের কষ্টের দিনে, অভাবের দিনে। যাই হোক, অধিক সময় নেব না। শ্রী মহাত্মা মহারাজজি শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাবো, উনি ওনার বচনামৃতে আমাদেরকে আপ্যায়িত করুন এবং পরম গুরু মহারাজের প্রতি উনি আন্তরিক ওনার শ্রদ্ধা বাণী পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করুন। আজ 125তম শ্রীমদ ভগবত গীতা জয়ন্তী। সকালবেলা আমাদের শ্রীকুণ্ডে মূল পাঠও হয়েছে আমাদের বিদ্যালয়ে। শ্রীমদ ভগবত গীতা জয়ন্তীর আজ শুভ দিবসে শ্রীমদ ভগবত গীতার ব্যাপক অনুশীলন, ভগবত গীতাকে যাতে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্বয়ী শাস্ত্র বিস্তরই, যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখ পদ্মা বিনিসৃতা। সেই ভগবতী গীতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বাণী এখানে বিরাম দিচ্ছি।
यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादन्न गति कुतो ध्यायंस्तं यशस्वी संघं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्दे गुरुनिशभक्तनिशनिशभकरकं तत्प्रकाशाश्चतशक्ति श्रीकृष्ण चैतन्य संघं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतवचावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृतं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं येन तद्जयमुदीरये हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् वंशाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शनिर कोरी चरण वंदन जावैते विघ्नाश अभीष्टपुरम्। श्री श्री राधा कलाचंद चरणे शतकोटि नमन प्रणाम। आज हमारे शुभ एकादशी दिन, आज हमारे एकादशी पद एवं उद्यापन এই তিথিটা আমাদের বহু মূল্যবান। আমরা বহু সাধনা করলে এই তিথিগুলি আমরা সামনে উপলব্ধি পাই এবং আজকাল শুভ তিথি শ্রী শ্রী श्रीमद् भागवत गीता जयंती शुभ आविर्भाव आज के 5125 वर्ष আমরা এইভাবে ওনার জয়ন্তীটা পালন করে আমরা সব আসছি। এখানে আমাদের श्रीपाद रघुनाथ दास गोसाई पादे गद्दी अधीनस्थ श्री श्री गौरांग संस्कृत महाविद्यालय विद्यार्थी एवं पंडित मंडली আমাকে আপন দৃষ্টি করে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যে এই আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা উপলক্ষে আপনি একটু শ্রী গণেশ করে আসবেন।
যাই হোক আমি ওখান উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি মঙ্গলাচরণ শ্রী গণেশ করে প্রায় ৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত মূল পাঠ করে আমি বিশ্রাম নিয়ে আমি এসেছি। যাই হোক এই যে আমাদের শ্রীমদ ভগবত গীতা জয়ন্তী এরকম ভাবে যে আমরা আরাধনাটা যদি মেনে যায়, এটাই আমাদের ব্রজ মুকুটমণি শ্রী রাধা কুণ্ডের গৌরব। এই বিষয়টি আমি আগে করি যে আমাদের সভাটি হচ্ছে আমাদের প্রাতঃ স্মরণীয় परमानंदतम श्री श्री 108 कुंज बिहारी दास बाबाजी महाराज तिरोधाम दिवस उपलक्षे আমরা উপস্থিত হয়েছি এবং আমাদের কলিযুগ পাবন অবতার শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু पंचतत्व रूपे আপনাদের সন্নিকটে বিরাজমান। আমি শত শত মনন করি এবং আমাদের রাধা কৃষ্ণ শ্রী যুগলে চরণ আমি নমন করি এবং আমাদের পরম গুরুদেব শ্রী বিগ্রহ রূপে আছেন ও আমাদের परमानंदतम श्री गुरुदेव चित्र रूपे विराजमान আছে। এই সম্বন্ধে আমি তাদের কাছে মনন করি এবং শ্রীকুণ্ড আরেকটু বিষয় আমি জানাচ্ছি, ওটা আমি পরে বলবো। আমাদের শ্রীকুণ্ড নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব অজাগর ব্যক্তি महात्मा साधु संत एवं भक्तवृंद ओ आराध्य शक्ति मातृवृंद ओ भगिनी तादेर चरणे आमी बारंबार मनन करी प्रार्थना करी। हमारे ছোট স্নেহের পণ্ডিত বৈষ্ণবপদ দাস জি উনি এসেই আমাকে বললেন যে আপনি যে পরম গুরুদেবের চরিতাবলী গুণাবলী মহিমাগুলি আপনি হিন্দিতে বললে ভালো হয়। যে আমাদের গুরু ভাই গুরুবর দিল্লি নিবাসী, কানপুর নিবাসী, লখনৌ নিবাসী এই সব অঞ্চলের মধ্যে ওনারা এসেছেন। এই জন্যে আমি হিন্দিতে আমি বলার চেষ্টা করি। পরম গুরুদেব যার যে চরিতাবলীগুলি ওনার প্রায় 47 বর্ষ আমরা ওনার চরিতাবলীগুলি গান করে আসছি। আমি আজ মনে মনে ভাবছিলাম, মনন করছিলাম বিছানায় বসে 47 বছর হয়েছে, तो और 3 साल बाकी है 50 वर्ष का। मैं चिंतन किया, मनन किया। 50 वर्ष होने से एक बहुत बड़ा मैं सम्मेलन साधु समाज, वैष्णव समाज, पंडित समाज, गोस्वामी सम्मान और ब्रजवासी समाज का मैं एकत्रित करने का मैं संकल्प लिया। हमारे ज्येष्ठ गुरु भागा श्री श्री शक्तिदास बाबाजी महाराज एवं पंडित पर्वत स्नेहर श्री वैष्णवपद दास के सामने तीनों ने हम लोग विचार विमर्श करके इसका हम लोग निर्णय लेंगे।
यदि ये हम लोगों का प्रस्ताव निर्णय पास हो जाता है तो हम लोग 2024 से इसका हम लोग संगठन व्यवस्था करने का हम लोग व्यवस्था होगा। जैसे हम लोग 84 कोष ब्रजमंडल में हम लोग सादर आमंत्रण जनाऊंगा, नवद्वीप धाम को भी सादर आमंत्रित करूंगा और नीलाचल धाम पुरी धाम को भी सादर आमंत्रित करूंगा। ये पहले से हमारा मनोवासना को संकल्प करके ये अनुष्ठान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ये जो है, जो हमारे श्री श्री गुरु महाराज के उपलक्ष्य में थोड़ा सारांश आवृत्ति करता हूँ। एक दृष्टांत ये है, परम गुरुदेव जिस समय अंतलीला नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए उन्होंने इच्छुक किया था, उसी समय हमारे गुरु महाराज श्रीधाम वृंदावन पुरुषोत्तम गोस्वामी के यहाँ जैसे घेरा के वहां से उसका कथा भागवत चलते थे। जिस समय ये अवस्था थे उसी समय हमारे बड़े गुरु भ्राता और मैं चिंतन करता हूँ क्या किया जाए, महाराज जी को सूचना देना ठीक है कि नहीं। उन्होंने हमारे सतीदार दादा और हमको नेत्र खोल के बोल रहे, देखो हमारे दोनों का मनोभाव जानकारी करके बोल रहे, देखो मैं जो सोचता हूँ मनन करता हूँ ये ध्यान रखो। श्रीमद् भागवत जहाँ जो साधु गुरु वैष्णव भक्तवृंदों को जहाँ हरि कथा परिवेशन चर्चा होता है, वहाँ मैं इच्छा करता हूँ, मनन करता हूँ कि राधा कृष्ण राधा रानी को मिलने से भी बड़ा महत्व देता हूँ। अतः महाराज जी का नाम लेके बोलते हैं, उसको हमारा जो इस अवस्था है खबर नहीं देना। तो हम लोग दोनों मनैराज हुआ, अधैर्य हुआ, फिर भी केचित काचित करके हमारे काका गुरु गौर सुंदर दास जी थे। उसी समय हमारे वृंदावन मथुरा कोई जान महल नहीं था, केवल टांगा था, घोड़े सवार टांगा, उसको भेजा गया। वहां पर जो मनोभावना गुरुदेव का मनोभावना उन्होंने जागृत था, कथा में प्रवचन में मन उल्लास नहीं होता था, इसलिए उन्होंने समझ गए, हमारे गौर सुंदर काका जी को देख के वो समझ गए गुरु महाराज का कोई विशेष खबर तो लेके आया है। तो उन्होंने बोला, गौर सुंदर कैसे हैं? गुरु महाराज के बोले ठीक ही हैं। तो तुम आया कैसे? नहीं, केशव दास ने हमको भेजा, बोले तुम्हारा गुरु महाराज को खबर कर दो। बोले अच्छा ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। तो समझ गए महाराज जी। तो उन्होंने तुरंत श्री पाठ जा करके पहले श्रीमद् भागवत का माला चंदन पुष्प से पूजन किया, मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करके साधु संतों
महात्माओं को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ अश्रु नीर से बड़े दुख की बात मैं आप लोगों के सामने ज्ञान करता हूँ, सूचित करता हूँ। हमारा गुरु महाराज का अवस्था बहुत शोचनीय है। हमको तुरंत इसी समय इसी काल में हमको पूछना होगा। काल का गति कोई टांगा नहीं मिल रहा, कोई टांगा यदि मिले तो सवारी नहीं होने से लाएगा नहीं। उसी समय जो हमारे पैसा का भी बहुत अघटन था, बहुत पैसा हम लोग आंखों से देखा ही नहीं, तो किसी प्रकार उन्होंने टांगा से आए हमारे बड़े बाजार जहाँ पर महाप्रभु ये जो हमारा हनुमान जी का मंदिर तक आए, वहां पर रुका। तो उस समय हमारे परम गुरुदेव का विमान और कीर्तन सहित 4 बार परिक्रमा हुआ था। ये देखकर हमारे गुरु महाराज टांगे से जमीन से गिर करके अचेतन हुए। जब अचेतन हुआ तो साधु संतों को उन्होंने उठाया। उठाने के बाद बहुत आंखों से पानी उन्हें छिड़का दिया, बहुत रोने लगा, बहुत विशेष से रोने लगा। दोनों सेवक ने हमारा दोनों बाएं तरफ हाथ में सीधे हाथ में लेके शिव भर कर ले गया। इसमें कहने का तात्पर्य ये है, परम गुरुदेव ने बोली था और महाराज जी ने जो श्रीमद् भागवत कथा राधा कुंडवासी संत महात्माओं को जो उन्होंने सेवा किया, उसी के प्रभाव से हमारे परम गुरुदेव बहुत संतुष्ट थे और बहुत उसको कृपा आशीर्वाद से ये करते थे। जैसे पाठ होते थे, जैसे पाठ में कोई सारांश या संस्कृत में कुछ होता था तो हमारा एक दास के को भेजता था, जाओ तुम्हारा गुरु महाराज को बुलाओ। तो महाराज जी को बोलते थे, बोले महाराज परम गुरुदेव ने आपको बुलाया। तो तुरंत बेचैनी सी हो जाती थी। बोलो बाबा उसके सामने कोई है न अकेले हैं, प्रसंग क्या है? मैंने बोला नहीं, आपका जो आज राधा रमन मंदिर में जो आपका कथा हुआ उस प्रसंग में थोड़ा सा आपसे चर्चा करने के लिए बुलाया। अच्छा ठीक है। तो दूर से खड़े हैं, मैं आया, अरे महाराज जी गुरुदेव आपसे बुलाओ। आगे दंडवत कर जाओ दूर से। बोले ये जो प्रसंग तुमने व्याख्या किया वो कहाँ से किया, उसको हमको लिख के दो। जो भी कथा प्रसंग थे उन्होंने लिखित में लेते थे, मोहरे जमाने से नहीं मानते थे। इसी प्रकार गुरु महाराज का और परम गुरुदेव का जो तदात्म मनोभावना एक ही थी। तो उसी प्रकार जो हमारे भाई वैष्णव दास जी ने जो थोड़ा सा उल्लेख किया, जो यहाँ जो हम लोग बैठे हैं, यहाँ बहुत ऊंचा टीला था, घनघोर जंगल था और काला नाग या काला सर्प यहाँ बहुत विराजमान करते थे। जब गर्मी होता था तो हमारे भजन कुटी में भी आ जाते थे। एक दिन ये जो समाधि के सामने खुला हुआ था, वहाँ कटाया ईंट का खरंजा बैठा था। वो खरंजा में एक पाँव में एक दबाने से एक तरफ उड़े जाते थे।
तो एक दिन का बात है, मैं गर्मी का दिन चारपाई में परमदेव को लेटाया और खिजूर पत्ता के पंखा से हवा देता था। उसी समय हमारे शुक्ल पक्ष में थे, चंद्रमा जी उदय था। तो वहां पर जब हमारे प्रसंग हो रहा था, परम गुरुदेव और हमारा शास्त्र कथा उन्होंने जब शुरू किया, तो शुरू करते करते बाएं पहिया वहां पर वेस्टर्न करके कम से कम एक हाथ करके यूं करके सुन रहा था हमारे परम गुरुदेव का चर्चा, और मैं सुन रहा हूं, मैं सुनता हूं। तो ये जब सुन रहा है तो वो जो चंद्रमा का जो छाया यूं हो रहा है, तो मैंने देखा तो हमारे चाकलेश्वर जी का जो वाहन आई हुई है। चलो कोई बात नहीं, ये बोल के मैं परम गुरुदेव को अचानक खटिया से उठाया। बोले क्या हुआ? बोले इस तरह से। बोले कोई बात नहीं। किधर गया? नहीं, हम लोगों का चर्चा सुन रहे थे। तो क्यों भगाया? जब हम दोनों का सरता जब चर्चा हो रहा है राधा रानी का, तो तुम भगाया क्यों? मनी वो भगाया नहीं, ये भी है। यदि आप प्रसन्न करें तो आ जाएगा दोबारा। ये प्रत्यक्ष घटना है। यदि आप किसी समय टाइम ले ले तो हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता से भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये सब मनन करते हुए जो हमारे संक्षेप में जो हमारे वैष्णव दास जी बोले, यहाँ जंगल थे, कोई पैखाना लेटरिन नहीं थे, और सामने तो दिख रहे हैं वहां पर एक कुआं था। कुआं का पानी से शौचालय इत्यादि समझता हम लोग उसका व्यवहार करते थे। तो मैं जन्मदिन के भांति उसको शौचालय में बैठा देते थे और पीछे लोटा डालने के लिए जाते थे। तो काल कर्म कोई आ गया, बातों में भूल गया। तो जब मैं एक लोटा पानी लेके आ रहा हूं, इतना गुस्सा से इतना हमको बोला, बोले नहीं लोटा ले जाओ, मैं रोज से हम सब करेंगे, नहीं दूंगा। बहुत जिद से बोला। तो मैं लोटा सामने रख के साष्टांग दंड, आप जब तक नहीं उठेंगे हमको नहीं सांत्वना देंगे, हम भी अनशन में बैठे। परम गुरुदेव देखा था, ये भी तो बहुत जिद्द है, ये हमसे ऊपर हो गए। चलो, जब खुशी से बोलते थे तो बोले केशवानंद जी ठीक है उठो, मैं उठ गया, ठीक है। इस तरह से उसका संतलाप होते थे। उसका जो एबीपी है, जो जिसमें लेखन पठन चित्रादि करते थे, उसका भी टूल काली कलम एबीपी है। वहां पर सजावट जितना भी ग्रंथ थे, नोट ये सब थे, सब साथी में बंधा हुआ रहते थे। जब हम बैठते थे, पंखा करते थे, पंखा करते करते कलम रुक गया तो एक बगल से वो साथी का गांठ खोल के उसको एक खाता पकड़ा देते थे। पकड़ाई से नहीं, जिस पृष्ठा में प्रसंग है उसी पृष्ठा में खोल के हम सामने रख दिए। चलो, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, एक दिन हमको पूछा, सुनो हमारी मन की भाव तुम कैसे बताया करें? हमारी मन के भाव तुमको तुम बोला नहीं। ये जो हमारा नोट खाता है, इसको ला करके हमको दो, ये तुम बोला नहीं। ऐसा क्यों? मैंने
महाराज जी आपका आशीर्वाद है, कृपा है, जैसे आपका मनोभाव और हमारा मनोभाव एकात्म होने से सेवा होता है, नहीं तो नहीं होता है। बोले ठीक है चलो, इस तरह से उसका सेवा करते रहा। इस समय में मैं हमारे बड़े भ्राता त्रिभुवनदास जी महाराज थे, उन्होंने हमारे 84 वृंदावन के बड़ा कलाकार, बड़ा गायिका थे। उन्होंने जब गाते थे सब श्रद्धा बिंद, भक्त बिंद, नर नारी सब चकित रहते थे। मैं उसका पीछे पीछे दौहारी करते थे। तो उन्होंने जब उसका और हमारा जब कोई मतांतर होता था, खटपट होता था, तो उसका यही रास्ता था परम गुरुदेव को भड़काना। तो परम गुरुदेव का कोई नोट या कलम इधर उधर कर देते थे, तो परम गुरुदेव ने हमको कठोर शासन कर देते। कहाँ गया, क्यों यहाँ को कौन हाथ लगाया, तुम रहते हो हर समय, कौन लगाया हाथ, तुमको निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है महाराज जो भी हो। तो हम डर के मारे हम बोलते नहीं थे, त्रिभुवनदास जी ने ऐसा किया है, चलो कोई बात नहीं। जो परम गुरुदेव का शासन मैं उसका बदला लेता था। जब कीर्तन होता था, मान लीजिए व्यास घेरा में दिवस हो रहा था, तो मैं गया, तो उसी समय उन्होंने मध्यम ताल ये दिया, 10 कोसी लेके ऊपर हाई लेवल से कीर्तन करना शुरू कर दिया। और लानी ऊपर से इतना चलने लगा, हाई लेवल से नीचे लाता ही, और बड़ा बड़ा करता हम बजाते थे। तब उन्होंने क्या करते थे, हमारे मोहड़े में हाथ लगाते थे। इस तरह से उनका ये सब बात व्यवहार करते थे। तो हमारे जब आते थे परम गुरुदेव को वो शिकायत करते थे, बोले दादू जी आपका प्रिय केशवानंद जी को समझाओ, जो हम गाते हैं उससे ऊपर गा करके हमको नीचे ला देता है। तो तुम क्या किया, बोले मोड़ी बात। अच्छा ठीक है। इस तरह से ये करते करते जब उसका ये विवरण हुआ और हमको परम गुरुदेव ने रात में उठते ही 2 गाना गाने के लिए बोलते थे। पहले उन्होंने गाना गा करके सर को हमको सिखाते थे। एक तो है आपका एक गाना है सुंदर बाला सचिद वाला नाचत पड़ी शिव कीर्तन में। इस तरह से गाना गवाते थे। और एक गाना गाते थे के भाई हमने दुनिया। यदि आप लोगों का यदि समय नाश्ता करूं तो हम उसका शरण करके मनन करके जो उन्होंने हमको गाने के लिए निर्देश दिया था, उसी प्रकार में गा के आप लोगों को सुनाता हूँ। के তুমি ঘুমি গেছো সংসার সাজাতে বাকি রাখো না আর তো কিছু সঙ্গে তুমি ঘুমিতে চো।
শ্রীগালো করে তারা ধরে তোমার টানা টানে করে বুঝি পূর্বরে তাদের সধিবার তোরে অকাতরে নিজের মাংস দিতেছ কে ভাই তুমি ঘুমিয়েছ সুকুমল সজ্জায় কামিনের সনে কাটাইতে রাত্রি দিনে আজ কেন রে ভাই কদর্য শ্মশানে চিতাদাহের কষ্ট শীতনে নিয়েছ কে ভাই তুমি ঘুমিয়েছ পুত্র পরিবার তিলয়াদ ছেড়ে থাকিতে না কবু নয়নের পুত্র পরিবার তিলয়াদ ছেড়ে থাকিতে না কবু নয়নের তবে কেন আজ কদর্য শ্মশানে তাদের সঙ্গে কি ভাব অভিমান করেছ কে ভাই তুমি ঘুমিয়েছ অনিমেষ নেত্রে কার পানেতে স্বপ্ন শূন্য নিদ্রায় আছো ঘুমাইয়ে তোমার ঘুম ভাঙানো চিহ্ন পায় না খুঁজিয়ে তোমার ঘুম ভাঙানো চিহ্ন পায় না খুঁজিয়ে কার ঘুমের ভাই নিশ্চিন্ত রয়েছ কে ভাই তুমি ঘুমিয়েছ স্বপ্ন শূন্য নিদ্রায় ঘুমানে গেলে সংসারে মোহ যেতে হয় ভুলে স্বপ্ন শূন্য নিদ্রায় ঘুমানে গেলে সংসারে মোহ যেতে হয় ভুলে লীল কণ্ঠ বলে দাও নামাই বলে লীল কণ্ঠ বলে দাও নামাই বলে কেমন করে বন্ধন পরিত্যাগ করেছ কে ভাই তুমি ঘুমিয়েছ এটা ভোরের বেলা আর একটা 3টার দিকে ঘুম থেকে উঠলে উনি আমাকে আবৃত্তি করাতেন আমাকে শোনাও এইভাবে ওনার সেবা এবং শুশ্রূষা হতো এই প্রসঙ্গে আমাদের
श्री श्री गुरु महाराजे जे निकट আমরা যেভাবে উনি চিত্র অঙ্কন গ্রন্থ লেখন যে আমাদের যে আপনারা এই 7 দিন ধরে উনার রচিত মনোভাবনা স্ফুরিতিতে যা উনি লিখেছেন সেই আমাদের 7 দিন ধরে শ্রীমান বৈষ্ণবপদ ভাই আপনাদেরকে ভক্তি কল্পলতা গ্রন্থ শুনিয়েছে। এইভাবে সমীপের দুগ্ধ ভাণ্ড হইতে দুগ্ধ বেশে শ্রীকৃষ্ণ শৈল পরিক্রমা করি গোবিন্দ কুণ্ডে আসি স্নান করি বৃক্ষ মূলে আসে সন্ধ্যা বসি গো পালক এক দুগ্ধ ভাণ্ড লইয়া আসি আগে ধরি কিছু বলিল বচন পুরী এই দুগ্ধ লইয়া করো তুমি পান মাগি কেন নাহি খাও কিবা করো ধ্যান। আমাদের গিরিরাজ তলহটিতে श्री श्री गोविंद तट श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद ये ध्यान मग्न करके माला झोली लेके तमाम के पेड़ के नीचे बैठ के भजन किया करते थे। तब एक दिन गया, 2 दिन गया, तृतीय दिन में हमारे गोपालक वेश धारण करके दुग्ध भांड लेकर के सामने रोका, बाबा ये ठाकुर जी को भोग लगा के पाना। ये तस्वीर चित्र हमारे परम गुरुदेव ने अंकन किए हैं। ये यदि आप लोग दर्शन करना चाहें तो हमारे गुरु महाराज के भजन स्थली में पद्मावती सुरक्षित रखा है, आप लोग दर्शन करते हैं। और एकदा श्री रूप गोस्वामी पाद किंचित दुग्ध श्रीपाद सनातन गोस्वामी प्रभु के लिए दूध पान कराने के लिए इच्छा किया, मन में इच्छा किया। इच्छा करने के बाद ही श्री श्री राधा ठाकुरानी बालिका वेश में दूध लया उपस्थित। ये भी हमारे चित्र रूप से हमारे परम गुरुदेव ने अंकन करके हम सबों को निर्देश दिया है और शिक्षा भी दिया है। ये भी हमारे गुरु महाराज के भजन स्थली में तस्वीर के रूप में पद्मावती आप लोग जाने से दर्शन मिल जाएगा। और श्री श्री नंदीश्वर पावन सरोवर श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद समीप में गोपालक वेश में दुग्ध आयन दुग्ध भांड हस्ते भगवान श्री कृष्ण, ये हमारे भक्ति रत्नाकर ग्रंथों में उल्लेख है। उसी को मनन करते हुए हमारे नंदीश्वर श्री सनातन गोस्वामी पाद ने दुग्ध भांड श्री कृष्ण ला रहे हैं। इसका भी चित्र अंकन करके पद्मावती हमारे प्रदर्शन में भजन स्थली महाराज के कुटिया में विराजमान है। और हमारे चारि वेद दधि भगवत नवविक मोथिलेन सुख खाइलेन परिधि चैतन्य चरितामृत में उल्लेख किए हैं।
श्रीमद् भागवत घनतम निर्यास द्वारा श्रीपाद कविराज गोस्वामी ब्रजेश मुकुटमणि श्री श्री राधा कुंड तट पर श्री श्री चैतन्यामृत ग्रंथ रचना लिख रहे हैं। एक ग्रंथ लेखाय मोरे मदन मोहन आमार लिखन जेनो सुखेर पठन। श्री श्री कविराज गोस्वामी पाद जिस समय राधा रानी और श्री कृष्ण को चिंतन करके जब लिख रहे हैं तो साक्षात हमारे मदन मोहन जी बोल रहे हैं, जो तुम जैसे भी कलम चलाओ मैं अपने आप लिख लूंगा। ये भी हमारे परम गुरुदेव का चित्र रूप से अंकन करके हम सब जीवात्माओं को निर्देश देते हैं, शिक्षा देते हैं। ये भी गुरु महाराज का भजन स्थली में विद्यमान वहां पर सुरक्षित है। ये हमारे नथाग्र नर्तन श्री धाम पूरी धाम में ये भी अंकन किए हैं, ये भी सुरक्षित रखा गया है। और हमारे झारखंड पर जो नीलाचल पूरी होते हुए झारखंड होते हुए जो श्री धाम वृंदावन आ रहे हैं, इसका भी उन्होंने अंकन किए हैं। उसमें अंकन में देखो लीला को प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। सर्प पात्र हरिण हस्ती गंडा पशु पक्षी नर नारी लता प्रदंग वृक्ष सबको हरिनाम करें। एक दिन घोरखंड झारखंड जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, हरिनाम करते करते तो एक शेर जंगल के अंदर एक बड़ा शेर लेटा हुआ था। उसका चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श श्री शेर के शरीर में लगा। उन्होंने दर्शना दो बाहु ऊपर करके कृष्णा कृष्णा बोल के नचने लगा। ये दृश्य सबका जो ब्राह्मण थे उन्होंने देखा ये चमत्कार। इसी चमत्कार देखते हुए हमारे चाकलेश्वर जी भी पीछे पीछे इस चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम जीव को देते हुए वे भी दर्शन करते करते ये आप लोगों को हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं। मैं भी इस अभिलाष जो ये झारखंड का दर्शन करने के लिए इस दास को हमारा भाग्य मिला था। चैतन्य क्या हाँ चरण पहाड़ी हाँ कुजू कलियारी चरण पहाड़ी उसका नाम है। तो वहां पर जब वहां पर हम गए तो देखा विद्यमान चैतन्य महाप्रभु का श्री चरण श्री पत्थर के ऊपर दलदल अवस्था की तरह उसका श्री चरण अद्यावधि है विद्यमान। शेर का चिन्ह विद्यमान जो ये भी हंस के बोल रहा है मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दासा को दास हूं। ये निर्देश करता है भक्तों को। हाथी गंगा का चिन्ह भी ऐसा निर्देश होता है सब का ओ भागवत का ये दृश्य पूर्व है। वहां पर मैं गया सब जगह जंगल झाड़ी में निर्देश किया देखा एक अजगर बहुत बड़ा अजगर जो हमारे प्रेमदास जी वहां पर अपने मन लाने से वहां गए थे तो
उन्होंने बोला चलो जो हमारा ये प्रश्न मेरा रखना ही नहीं है तो चलता हूँ झारखंड में। वहां पर जितना भी आपस का वनवासी है सबको बाबा उधर नहीं जाना, शेर है अजगर है आपको खा जाएगा। बोले किधर? इधर। तो वहां गया अजगर के महल में, वहां बैठ गया। इन्होंने हरिनाम करने लगा, चैतन्य महाप्रभु को शरण करने लगा। हाय चैतन्य महाप्रभु, हाय गौरांग महाप्रभु, ये बोल के उच्च स्वर गान करते करते जब अजगर निकला उन्होंने परीक्षा किया, मोहरे वादन किया। बोले ले भाई इसके लिए तो मैं आया हूँ, चैतन्य महाप्रभु के चरण के निकट में हमारा यदि ये देह खत्म हो जाए मैं कहना। उन्होंने स्तुति सुन के अजगर अपना मोहरे बदल करके गुफा में घुस गए। इतने में देखो तमाशा था, जब वहां पर वनवासी झारखंड का जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने जो भी आता है उसको बोल देते हैं एक बाबा यहाँ रहता है। बल्कि उसी समय आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पहाड़ी जंगल है, वहाँ कोयले का खान है और बहुत बड़ा कोयले का खान है, तो उस जगह जाने के लिए बहुत कठिन होता है। उसी समय सेंट्रल गवर्नमेंट के वन विभाग बड़ा ऑफिसर हमारे कलकत्ता जी हमारे एक नवकमारी कोन्ना वहाँ पर पोस्टिंग में था, तो वहाँ पर गया। उसके साथ डीएम एसएसपी सब में है। बोले साहब उधर नहीं जाना, वो खतरा है। अरे खतरा है तो बाबा कैसे रहा? बोले महाराज वो बाबा का तो बात छोड़ दो, बाबा से डिस्टर्ब करके आप नहीं आगे बढ़ना। बोले ठीक है चलो देखता हूँ, ठीक है तुम लोग यहाँ ही रहो। तो उसका प्रशासनिक को सब वहां रोका और रुक गया बाबा के पास। बाबा के पास गया, बाबा को हिंदी बोलना शुरू कर दिया। बोले यहाँ क्यों आया और किस तरह से यहाँ रह रहा है? तो उन्होंने बोला मैं चैतन्य महाप्रभु को ये शरीर उसको अर्पण किया है, वो रखें या हमारे या इस भावना से मैं उसका चरण पादुका मैं नित्य स्नान कराता हूँ, फूल तुलसी अर्पण दे के मैं उसका धन्य होता हूँ। अच्छा बोले सुनो मैं चैतन्य महाप्रभु के अवदान नहीं जानता हूँ, मैं बंगाली हूँ, तुम बंगाल से बोलो, तुम भी तो बंगाली बनेगा। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारा क्या इच्छा है, मन में क्या अभिलाष है हमको बोलो। हमारा बोल रहे अभिलाष कि जितना भी हमारा एरिया है हम आश्रम करना चाहता हूँ। बाद में भविष्य में कोई टूरिस्ट आ जाए दर्शन लाभ करके करता हूँ, हमारा हार्दिक ये नहीं। बोले ठीक है। तथा उन्होंने 12 एकड़ भूमि उन्होंने प्रेमदास बाबा के नाम से लिखी। तो दूसरे जो मिनिस्टर आया ये सुना तो उसके पक्ष में नास्तिक धर्म का था। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से मशीन से लगाया। जिस समय चरण चिन्ह के सामने कोयले का खान, 1 नंबर कोयले का खान था, उन्होंने मशीन लगा दिया कोयले खान के ऊपर। तो उन्होंने प्रेमदास ने हाथ जोड़ के बोला ये महाप्रभु का अवदान तीर्थ है यहाँ। तो सुना उसका मशीन जितना भी लगाए थे सब खराब हो गया। वो मना नहीं, दूसरे भारतीय और अधिकारी को आदेश कर दिया दोबारा लगा तो क्या हुआ, बिल्कुल जग लग गया। बुजुर्गता से उसको खींच के लिए बाहर ले गए। इसमें जब दूसरा मंत्री आया तो बाबा से पूछा बाबा आप क्या तांत्रिक क्रिया करते हैं?
न क्या कर, बोले नहीं हम कुछ नहीं करते, ये चैतन्य महापुरुष करते हैं, हम नहीं करते। उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो, तो तुम्हारा कार्य हासिल होगा। नहीं उन्होंने फिर भी जिद्दी बात से उन्होंने मशीन लगाना बैठा किया, उसका भी मशीन को फेंक दिया। वहां पर चरण चिन्ह मंदिर जाने का रास्ता नहीं था, जंगल से भरा हुआ था। तो उन्होंने हमारे लिए बंगाली महिला मिनिस्टर ने रास्ता जाने आने का रास्ता काट के समतल कर दिया। उसमें दूसरा मिनिस्टर आया, देखो इसको तो हम खोद नहीं। तो उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु ने कोयला का खादान जो कोने से निकालते थे वहां पर आग लगा दिया। ये सब चैतन्य महाप्रभु का उपासना है। मैं भी अद्यापति गए, आग का खान में आग जल रहा था। मैं दिन में गया तो उतना तेज से नहीं देखा था। मैं रात में गया 10-12 बजे तो देख रहे इतना तेज से चल रहा है जो विद्युत चमका है इस तरह से, जैसे आग में जंगल में जैसा आग लग जाता है उसी प्रकार कोयला का खदान नहीं कर। दूसरा मिनिस्टर आया, ये सब चैतन्य महाप्रभु का देना है। दूसरा मिनिस्टर आया, वहां से पाबंदी कर दिया, जो यहाँ से कोई आगे नहीं जाएगा, कोई कोयला नहीं, तो सील कर देगा। ये मैं इतना ही करके अपना वाणी समाप्त करता हूँ। और यदि हमारे कोई भाषा में परिवेशन में कोई भूल त्रुटि हो तो हमको अपना निज गुण से क्षमा करें। और हमारे आज परम गुरुदेव के श्री हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। कल हमारे अनुष्ठान सवेरे 9 बजे से प्रार्थना कीर्तन, उसके बाद परम गुरुदेव का चरितावली या सूचक कीर्तन होंगे। आप सबों का मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। इस प्रार्थना कीर्तन एवं सूचक कीर्तन में आप लोग भाग लें। और मध्याह्न में हमारे सूचक का अंत में राधा कुंभ, शांत कुंभ, श्री श्री परम गुरुदेव का तस्वीर को दोला में सजा करके कीर्तन सह परिक्रमा करके आएंगे। कीर्तन के बाद यहाँ पर दधी मंगल कीर्तन होगा। दधी मंगल कीर्तन अंत के लिए हमारे वैष्णव गोसाई होगा। कीर्तन एवं कीर्तन मंडली एवं महात्मा बिंदुओं का शिरपा बंधन होगा। उसके अंत में हमारे साधु वैष्णव ब्रजवासी सेवा होगा। और आप लोगों से भी सादर निमंत्रण करता हूँ कि आप सब, भीड़ तो होगा ही, थोड़ा सा अपना परेशानी तो होगा ही होगा, लेकिन पहले पंगत में साधु संत और भक्तजनों, दूसरी पंगत में माता मही भगिनी इत्यादि का होगा। तो मैं इतना ही करके आप लोग